All right, so hello everyone, Assalamu alaikum. We are back with the ninth workshop of Deep Learning Masterclass. So welcome everyone. In this workshop, it's going to be very easy. I don't know why my team member has said it's going to be 2 hour. No, it's not going to be a 2 hour workshop. It's going to be very simple because we are just going to discuss the autograde, or you can say autogradient, which is basically implemented on the technique of automatic differentiation. So for those who don't know what is automatic differentiation, is actually the you can say the same as algorithmic differentiation. ठीक है? तो अब जिन लोगों ने algorithmic differentiation पढ़ी और जो सब नहीं पढ़ी है, डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना, ये सब हम करते आ रहे हैं, स्पेशली द चेन रूल. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. तो इसमें बेसिकली होता क्या, हमारे पास जो टेक्निक हमारे पास यूज होती है, इट्स लाइक अ जैकोबियन वेक्टर प्रोडक्ट. और वो जैकोबियन वेक्टर प्रोडक्ट का जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर partial derivative. I'm not going to teach how to like partial derivative, but if there is any student who is weak at it, so I can give those guys personal class on Discord and later about how to find partial derivative in mathematics, or they can just watch videos on YouTube regarding the mathematics. What we're gonna see, we're gonna just dive into automatic differentiation in PyTorch and how PyTorch utilizes the capabilities of automatic differentiation using autograd method, which is way too better than the backpropagation done by gradient descent algorithm. तो अब ग्रेडियंट एक साइड पे हमारे पास ग्रेडियंट descent algorithm है, एक साइड पे हमारे पास एटोमिक डिफरेंशिएशन है. अगर हम इन दोनों को आपस में compete करें, so there is a huge probability that automatic differentiation is going to win because in the less number of epochs it adjusts weights more quickly and more in the time. तो चलो इसको देखते हैं और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया. And I want to just give a shout out to Hamza who has just sent pull request, and there was one more person, I don't know who was he, just forgot it. So thanks for sending pull request on in deep learning masterclass library as well and machine learning zero to hero library as well. तो उन्होंने दोनों repository pull request send किए. They have just give some nice updates to it. I'm gonna merge it by tonight and going to make them made those guys contributed in this repository. And I love this open source contribution. So keep doing like that. It's beneficial on the both ends, and it's the beneficial for this repository as well. And since you're going to be a contributor to this repository, so it's beneficial for your end as well. All right, so let's discuss what is autograde in PyTorch. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल अल्फाजों के अंदर का PyTorch कुछ भी नहीं है. PyTorch is just like a simple reverse form of gradient descent algorithm which can record history. Now by saying which can record history, what is mean by कि जब हमारे पास दो टेंसर्स के दरम्यान कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, उसके बाद फिर कोई नया ऑपरेशन फॉर्म, एक नया टेंसर फॉर्म हो रहा है, फिर उसके अंदर फिर कोई ऑपरेशन है, उसके बाद भी कोई अगर नया टेंसर फॉर्म हो रहा है, सो वी कैन एक्चुअली नो that what is happened to those tensors. But in the gradient descent algorithm, since we don't have any kind of history, तो एक आइटरेशन के बाद ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को नहीं पता होता कि मेरे पास पीछे क्या हुआ. उसको सब ये पता होता है कि मेरे पास ये वेट है. वो बैकवर्ड नहीं जाता, वो बेसिकली आइट्रेट करता है. इट्स मूव इन लाइक अ यू कैन से सर्कुलर मोशन, कि वो आगे गया और फिर घूम के दोबारा पीछे वाला पॉइंट पे जाएगा और कहेगा नहीं अब ये तीन ही अब और सेट करना. ठीक है, बट इन ऑटोग्रेड इट डजंट वर्क लाइक दैट. ये पहले फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगा, फिर टॉप टू बॉटम वापस आता है, फिर बॉटम टू टॉप वापस जाता है. सो दिस इज समथिंग प्रीटी डिफरेंट, and the less number of epochs it can compute pretty easily well. Why I'm not implementing autograd in Python right now, because it's going to be pretty tough for all stages of people here. Because what I've seen कि जैकोबियन मैट्रिक्स ज़्यादातर बैचलर्स में नहीं पढ़ा जाता, और बैचलर्स में क्या, आई एम नॉट श्योर अबाउट मास्टर्स, बट बैचलर्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता. दैट इज व्हाई आई एम नॉट pinning with that algorithm right now in programming, but somehow we're gonna deal with the story of Jacobi matrix, that what is that actually. तो यहाँ पे हमारे पास मैंने एक थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई है. प्लीज रीड दिस डिटेल वंस द वर्कशॉप इज एंडेड. रिकॉर्डिंग अगर अपलोड होने में थोड़ी देर लग जाती है, सो डोंट वरी. ये तो खैर होती है ना अपलोडेड, सो प्लीज लुक एट इट. आई होप यू गाइस will see to this notebook after each class and we'll just revise what you have learned.
तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। जब तक अगर आप इवन तो अगर आप कभी किसी दिन मसरूफियत की वजह से प्रैक्टिस नहीं भी कर पाएंगे, सो एट सम पॉइंट व्हेन वी आर गोइंग टू रिज्यूम अ क्लास ऑन अदर डे, so everything will be clear to your mind, everything will be going to refresh on your mind as well. तो चलते हैं ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की तरफ। अच्छा जी, एक चीज़ और कि ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन के अंदर ना दो मोड्स होते हैं, एक फॉरवर्ड मोड भी होता है और एक बैकवर्ड मोड होता है। हम अभी काम कर रहे हैं रिवर्स मोड, ठीक है ना। फॉरवर्ड मोड पे इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वैसे तो है बेसिकली, पहले फॉरवर्ड जाएगा फिर रिवर्स आएगा, लेकिन एक होता है सिर्फ फॉरवर्ड ओनली, लेकिन वो पाइटॉर्च के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अलग से बात करो अल्गोरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो वहाँ एक लेवल पे होती है। बट इन ऑटो ग्रेड, जो कि ऑटो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, एक तरीके से ऑटो ग्रेडियंट ही है, जिसको जो टेक्निक यूज़ कर रहा है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की पाइटॉर्च के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा हुआ है कि अच्छा, so power tensor is the central class of the package if you set its attribute dot requires grade as true, जैसा हमने उस दिन किया था कि हमें dot requires grade true रख दिया था। So it start tracking all the operations on it, कि भाई इस पे क्या काम परफॉर्म हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, डिवीजन हुआ है, it can record every single thing and have all the gradients computed automatically. The gradient for this tensor will be accumulated into dot grade attribute. अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये सारे के सारे जो ग्रेडियंट्स होंगे वो इसमें accumulate हो जाएंगे, ये भी हम देख चुके थे उस वक्त कि हम जो डॉट ग्रेड लिखते हैं, जो कि आज भी हम देखेंगे, तो हमारे पास उनकी सारी सारे ग्रेडियंट्स जो accumulate होते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डिटैच की, कि अगर हमें हिस्ट्री को, हम चाह रहे हो कि भाई हिस्ट्री अब ना कंटिन्यू हो, या फिर हिस्ट्री अलग हो जाए और टेंसर अलग हो जाए और किसी और नए में असाइन कर दें, तो उसकी जितनी भी कंप्यूटेशन हिस्ट्री होगी वो उससे डिटैच हो जाएगी, एंड टू प्रिवेंट इट्स गोइंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्यूचर कंप्यूटेशन फ्रॉम बीइंग ट्रैक, ठीक है ना। हम ट्रैकिंग हमारे सामने ट्रैकर हमारा बंद हो गया है। डॉट बैकवर्ड पे भी हम पहला काम कर चुके हैं, या अगर नहीं भी कर चुके आई गेस नहीं करा हमने, तो डॉट बैकवर्ड पे क्या होता है, अगर आप डॉट बैकवर्ड लगा दो तो हमें पता चल जाता है कि पीछे हमारे काम क्या हुआ है, क्या हिस्ट्री है इसकी और क्या नहीं है। अच्छा, अमूमन तौर पे हमें ट्रैकिंग हिस्ट्री बंद करनी पड़ जाती है, एंड दैट्स नेसेसरी, दैट इज व्हाई वी यूजुअली इम्प्लीमेंट विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड। वो कब करते हैं, व्हेन वी आर हैविंग मॉडल, तो क्योंकि जब हम मॉडल को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो मॉडल के पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्स ग्रेड ट्रू होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें उसके लिए ग्रेडियंट्स की नीड नहीं होती, वो काम अपना खुद कर रहे हैं ना, तो हमें अपने ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद करेगा, हमने उसकी कोई हेल्प नहीं करनी होती। तो इन दैट सिनेरियो समटाइम्स वी नीड टू स्विच दैट ऑफ, कि हमने फिर अच्छे खासे ग्रेडियंट वाले टेंसर्स के ऊपर भी जिसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड हो भी रही होती है, वी जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड जस्ट टू स्टॉप द ट्रैकिंग। अच्छा, ये काम कब कब करना है, कैसे कैसे करना होगा, ये हम आगे मेन अपनी प्रोडक्शन वर्कशॉप में देखेंगे कि किस तरीके से डाटा हमारे पास हिस्ट्री फ्लो कर रहा है और किस तरीके से हमारे मॉडल डिस्टर्ब हो सकते हैं जस्ट बाय गिविंग देम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट बाय प्रिवेंटिंग देम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मॉडल के अंदर डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होती है। नाउ देयर इज वन मोर क्लास व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोगेट इंप्लीमेंटेशन व्हिच इज फंक्शन। तो भाई टेंसर्स और फंक्शन जो है ना, आपस में समझ लो एक बहन भाइयों की तरह, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड बिल्ड अप विद ए साइक्लिक ग्राफ, so that encode a complete history of computation. Each tensor has a dot grade function attribute that references the function that has created the tensor. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि टेंसर फ्लो के अंदर फंक्शन लेके पढ़ी थी ना, if you guys remember, it's almost the same thing, तो लेकिन but they are interconnected with each other, the tensor and function, and of course they are utilizing the ability and benefits of autograde function as well, कि हम उसके थ्रू जितनी भी हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है, फंक्शनल एप क्या इज फुली कैपेबल ऑफ दैट, चाहे पर हमारा स्केलर में काम चल रहा हो, चाहे हमारा काम वेक्टर में चल रहा हो, देयर इज नथिंग व्हिच कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ट्रैक्ड। ठीक हो गया, तो ये हमारी कुछ डिटेल्स थी ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की, कि हाउ इट्स बेटर एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम्स। इफ यू सी हियर ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, लेट मी सर्च इट, automatic differentiation, and let me just show you up, let me just pull up your screen. Screen to pull up here already, just let me pull up the perfect I guess this was the image my team member has put up on the today's workshop. So let's just discuss this. Oh my god, this is just black and white. चलो कोशिश फिर भी करेंगे इसी को देखने की।
ये तो और छोटा हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सो वी गोना सी इट कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सो यू कैन लेट मी नो कि भाई बहुत छोटा है। सो वी गोना डील विद द डिफरेंट वन। अच्छा, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इनपुट आया ए से। ठीक है, हमारे पास ए से इनपुट आ रहा है। जस्ट एग्जांपल ले लो कि हमारे पास ए से इनपुट आ रहा है हमारे पास। अब बायस भी है। अब इसको, अच्छा बायस को भी रिमूव करो, अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास बायस नहीं है। आई डोंट वांट यू गाइस टू बी, यू कैन से, कंफ्यूज ना हो जाएगा। सिंपल ये समझ लो कि ये हमारे पास एक टेंसर है ए, एक हमारे पास टेंसर है, यू कैन से, किस तरह बताऊं, ये बी हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया। अब हमारे पास आपके ना वेट्स जो होंगे ना हमारे पास अवेलेबल है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 3 है, इसका वेट 1 है। जब हमारे पास कोई इनपुट होता है तो उसका वेट नहीं होता। अभी एरोस के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, एरोस के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा। आई नो कि एरोस इस साइड से है, लेकिन अभी एरोस पे बिल्कुल मत जाइएगा। वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4। अभी इनपुट आया एक जगह पे, हमने कर दिया कि भाई ए को हमने 20 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इसके वेट जनरेट हो गए। फिर हमने आगे कर दिया इसको कि भाई ए जो है आगे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी ए आके डी से इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसके वेट 3 जो है जनरेट हो गया। पहले ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, उस पर हमने डी ऐड कर दिया तो हमारे पास वेट 3 भी जनरेट हो गया। फिर यहाँ से ए गया सी के अंदर, वहाँ जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया, वेट 2 जनरेट कर दिया। फिर ए गया यहाँ से डी के पास, और ए इंटू सी प्लस डी क्या हो गया हमारे पास, वेट 4 जनरेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट हुआ। आउटपुट आने के बाद उसने कहा भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लॉस फंक्शन है, क्या कर रहे हो आप लोग, गलत काम कर रहे हो, थोड़ा सही करो। तो ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक लॉस फंक्शन है। फिर वो दोबारा वापसी आया, वो दोबारा वापसी आया और अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड करता गया दैट विच वेट्स हैव टू बी एडजस्टेड। इसने कोई सिक्वेंशियली नहीं आया था और ना ही इसने सिक्वेंशियल कोई डाइव दोबारा मारी स्टार्टिंग पॉइंट से। ये वापसी आ रहा है कि भाई मैं जिस रास्ते से आया हूँ मैं जरा उस रास्ते से वापस जाकर देखूँ। मैंने कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कभी पैसे गिर जाते हैं, तो जिस रास्ते से हम आए होते हैं ना, फिर हम उसी रास्ते से वापस जा रहे होते हैं, हालांकि हमें पता होता है 99.9% कि हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम जा रहे होते हैं कि कहीं कोई चांस मिल जाए हमको। इसका 1% भी मिल जाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमें मिल जाए बस। तो बस यहाँ पे वही कहानी होती है कि एक एक चीज़ को दोबारा एडजस्ट करते हुए रिपीट करता है, फिर उसके बाद दोबारा आता है, फिर प्रीवियस जाता है, एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक हो गया? ऑलराइट, लेट जस्ट सी विद द बेसिक प्रोग्रामिंग हियर। यहाँ पे हमने टॉर्च को रन कर दिया है तो हमारे पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। आज आप देखे होंगे टॉर्च में सब टॉर्च इंपोर्ट की है। वी डिडंट हैव इंपोर्टेड टॉर्च विजन एंड अदर टॉर्च लाइब्रेरीज बिकॉज we are not going to use library, just we are going to see automatic differentiation separately, or especially to students who were having a great problem to understand in automatic differentiation, and they have commented me on Discord के sir please explain to us. So today it's the deal, आपको आज समझा रहे हैं, तो इसलिए पाइटॉर्च की एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब कल पाइटॉर्च की क्लास वैसे बनती नहीं थी, लेकिन कल एक पाइटॉर्च की क्लास अब एक एक्स्ट्रा हो जाएगी बिकॉज हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। कल मैं आया भी नहीं था ड्यू टू माई ह्यूज बिजी डेज। तो और बिजी डेज तो खैर नहीं थे कल, लेकिन इतने भी, और कल कुछ बग्स थे हमारी वेबसाइट के ऊपर। कल गूगल, 2 दिन से गूगल की वेबसाइट से बहुत ज़्यादा बग्स चल रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वी डिडंट पुल अप यस्टरडे, क्योंकि हमें अटेंडेंस मेजर करनी होती है, उसके बगैर हम इवेंट नहीं करा सकते थे। एनीवेज एवरीथिंग इज हैज गॉन फाइन नाउ। तो आज वर्कशॉप के बाद कल जो है, कल की वर्कशॉप वाकई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट इट्स गोइंग टू बी अ सेम मोरल वर्कशॉप, इट्स नॉट गोइंग टू बी लेंदी वन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मंडे से फिर इंशाल्लाह कोई बात नहीं, चलो एक दिन भी हो गया, लेकिन मंडे से हम CNN स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो आपने जितने भी फंडामेंटल नॉलेज ली है टेंसरफ्लो की और पाइटॉर्च की, देयर इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दोस एरा ऑफ CNN, RNN and other phenomena of deep learning algorithm. I hope you guys will be learning pretty well those. चलिए यहाँ पे हम टेंसर बनाते हैं। Create a tensor and set requires here is equal to 2 to attract computation with it. यहाँ पे मैंने लिखा है x is equal to torch.ones 2/2। तो हमने 2/2 का टेंसर बना लिया है यहाँ पे, और सबके अंदर 1 वैल्यूज होंगी क्योंकि हमने लिखा है torch.ones। अगर हम लिखते टॉर्च डॉट टेंसर तो हमारे पास हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती ऑफ कोर्स। तो अभी मैंने कहा चलो भाई ऐसे ही कर दो, बस 1/1 सारी 1 वैल्यूज रख दो और 2/2 का टेंसर डेवलप कर दो। और हमने बोल दिया कि हाँ भाई इसका जो है
ऑटो डिफरेंशिएशन जो है हिस्ट्री जो रिकॉर्ड करनी है वो ऑन कर दो, तो हमने कर दी रिक्वायर्ड गेट्स ट्रू। ऑलराइट, प्रिंट कर दिया हमने एक्स। तो हमने जब प्रिंट ग्रेड दिया तो टेंसर के साथ लिखा भी आ रहा है कि हाँ भाई इसका जो रिक्वायर्ड ग्रेड है वो ट्रू है। ऑलराइट, वी गोना मूव फर्दर। आज अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी दिख रही हो जैसे मशीन लर्निंग में दिख रही थी, तो इसकी सबसे छोटी सी रीजन है सिंस आई एम नॉट एट माय होम एंड आई एम ऑन माय लैपटॉप एज सम यूजुअल डेज, तो इसलिए दैट इज द रीजन कि आज की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी होगी और बड़ी नहीं होगी जैसे यूजुअली होती है। डू नाउ वी गोना डू सम टेंसर ऑपरेशन। तो कुछ भी नहीं करा हमने एक वाई टेंसर ले लिया और वो कैसे ले लिया कि उसमें एक्स प्लस टू कर दिया। अब जब हम एक्स प्लस टू करते तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उनमें टू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स के अंदर वन 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 था, अब क्या हो गया हमारे पास थ्री 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 हो गया। और जब हमने देखा विदाउट इवन प्रिंटिंग द ग्रेड, हमने जब वाई को प्रिंट करा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी ऑटो ग्रेड या ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की हिस्ट्री इम्प्लीमेंटेबल है एंड स्टिल ट्रैकिंग आर कंप्यूटेशन हिस्ट्री के भाई साथ क्या हुआ। उसने बोला ऐड बैकवर्ड जीरो। अब ये तो खैर एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको समझने वाला काम होता है कि भाई इसके जो पीछे काम हुआ वो एडिशन का हुआ है। आई डोंट नो व्हाई इट डजंट टेल यू कि क्या ऐड हुआ है, लेकिन इतना बता देता है कि भाई ऐड हुआ है। अच्छा, y was created as a result of an operation so it has a grade function। अच्छा, ये तो मैंने खैर बता ही दिया। अच्छा, प्रिंट y डॉट ग्रेड फंक्शन। अब हम चाहें फॉर एग्जांपल कि कभी एक मैट्रिक्स हमने टेंसर प्रिंट ही ना कराया हो और हम चाहें कि उसका हम सिर्फ ये जो है ग्रेड डॉट फंक्शन ये प्रिंट कर दें, सो दैट्स प्रीटी इम्प्लीमेंटेबल। हमने y डॉट ग्रेड फंक्शन लिखा तो उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये जो ये एड्रेस है ना, असल चीज तो होती है ये, इसके अंदर पूरी की पूरी इसकी स्क्रिप्ट लिखी होती है कि भाई इसके अंदर ऐड किया हुआ पूरा रेफरेंस मेंशन होता है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, ये सब मशीन के अंडरस्टैंडेबल होता है। बट इट्स प्रीटी यूजफुल फॉर मशीन इटसेल्फ के बाद में वो कंप्यूटेशन के वक्त उसके पास ये सारे के सारे हिस्ट्री रिकॉर्डेड हो। ऑलराइट, अच्छा, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का ना एक कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके मिलेगा मे बी इन माय एडवांस एआई क्लास के, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उस पर शायद हमारा एक हफ्ते तक ये दोबारा चले और वो अभी नहीं चला सकते बिकॉज अभी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। उसमें क्या होगा कि हम बताएंगे कि एआई वक्त के साथ साथ कैसे सीखता है विदाउट बीइंग ट्रेन्ड, तो वहाँ पे भी आपको बड़ा मजा आने वाला है बाय यूजिंग दिस ऑटोग्रेड फंक्शनैलिटीज। ऑलराइट, सो डूइंग सम मोर ऑपरेशंस ऑन y, z इज इक्वल टू y इंटू 3। अब हमने एक नया टेंसर बना रहे हैं z इज इक्वल टू y इंटू 3। अब y इंटू 3, तो मीन्स y इंटू y 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 3 is 27। तो हमारे पास 27 27 27 27 हमारे पास चारों में यही वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमने लिखा आउट इज इक्वल टू जेड डॉट मीन, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी उसका मीन होगा वो आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास चारों के अंदर 27 वैल्यूज आई हुई हैं, इधर अगर एक मिनट, मेरा माय माउस इज नॉट वर्किंग, ओके नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो चारों में हमारे 27 वैल्यूज हैं, ऑफ कोर्स सबको अगर आप प्लस कर भी लेंगे 108 हो जाएगा, 108 को डिवाइड बाय 4 कर ही लेंगे, सो 27 ही बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए टेंसर 27 ग्रेड फंक्शन और ये आ गया, दैट्स इट। तो ये एक सिंपल फंक्शन था जो कि आज हमने देख लिया। देन डॉट रिक्वायर्स ग्रेड चेंजेस इन एग्जिस्टिंग टेंसर्स रिक्वायर ग्रेड फ्लैग इन प्लेस द इनपुट फ्लैग डिफॉल्ट टू फॉल्स इफ नॉट गिवन। भाई ये कहानी क्या हो रही है, चलिए देखते हैं। हमने बोला कि भाई एक रैंडम नंबर का जो है ना आप टेंसर बना दो यहाँ पे 2 बाई 2 का। उसने कहा सही है, मैंने उसमें कैलकुलेशन करी, जो भी कैलकुलेशन हो आप देख सकते हो, ए इंटू थ्री जो भी उसने बनाया होगा ए इंटू थ्री हो गया, डिवाइड बाय ए माइनस वन जो भी इसकी वैल्यूज होंगी उसमें माइनस वन का डिवाइड हो रहा होगा। और मैंने बोल दिया प्रिंट ए डॉट रिक्वायर्स ग्रेड। अब बनाते वक्त जब मैंने ये मेंशन ही नहीं करा दैट ए विल रिक्वायर ग्रेड ऑटो ग्रेड, तो हमने जब उसको प्रिंट करा रिक्वायर्स ग्रेड, क्योंकि हम ए नहीं प्रिंट कर रहे, हम बेसिकली क्या प्रिंट कर रहे हैं रिक्वायर्स ग्रेड। क्या इसमें ग्रेडियंट मतलब ऑटो ग्रेड था, क्या इसमें कंप्यूटेशन हिस्ट्री रिकॉर्ड थी, सो व्हाट इट सेज फॉल्स। ठीक हो गया। देन व्हाट आई गोना डू कि मैंने बोला भाई ए डॉट रिक्वायर्स ग्रेड अंडरस्कोर ट्रू। अब मैंने जो उसकी वो थी क्या कहते हैं कंप्यूटेशन हिस्ट्री का जो ट्रैकर था वो मैंने इनेबल कर दिया है कि भाई अब कर लो जो काम करना है, जितना मतलब आपको उसको ट्रैक करना हो ट्रेस करना हो, करो खुल के करो।
सो नाउ इट्स गोइंग टू प्रिंट इट। अब a डॉट रिक्वायर्स गेट, दोबारा हमने लिखा तो अब इसने प्रिंट कर दिया ट्रू, क्योंकि हमारे पास प्रिंट क्या कहते हैं ट्रू हो चुका है। अब हमारे पास कुछ के लिए कंप्यूटेशन पावर नहीं हुई, सिर्फ जो है ना ग्रेडियंट एक्सेस ऑन हुआ। सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना परफॉर्म b इज इक्वल टू a इंटू a डॉट सम। तो हमारे पास a के अंदर जितने भी काम थे, अब b के अंदर हमने अलग से कुछ तो रिक्वायर ग्रेडियंट ऑन नहीं करा ना, लेकिन a में ऑन कर दिया। a इंटू a करा हमने, उस पर सम कर दिया, तो जो भी हमारे पास आंसर बनेगा वो b में आ जाएगा। अभी हमारा इससे सरोकार नहीं कि बी के में आंसर क्या आ रहा है, हमारा इससे सरोकार है क्या, एक ऑटोग्रेड फंक्शन या ऑटोग्रेड टेंसर जब उसके ऊपर हुआ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी वैल्यू किसी और टेंसर में असाइन हो रही है जो कि नॉन ऑटोग्रेड हो, तो क्या वो ऑटोग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया बी डॉट ग्रेड फंक्शन। अगर ये ऑटोग्रेड ना होता ना तो यहाँ पे नल लिखा आ जाता, या नल लिखा आ जाता, ये एक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब हमने लिखा बी डॉट ग्रेड फंक्शन, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास था, उसने बताया कि हमारे पास बैकवर्ड पे सम हुआ है, और उसका उसने एड्रेस भी दे दिया कि भाई ये एड्रेस है, जाके पढ़ लो उसको कि क्या ऐसा हुआ क्या सब नहीं हुआ। ऑलराइट, सो नाउ ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट्स हैं, तो अब हमें करना है उसको थोड़ा बैक प्रॉप, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि हाउ बैक प्रोपगेशन इज बीइंग डन इन दिस सिनेरियो। Let's backprop now because out contains the single scalar. Out dot backward is equivalent to out dot backward torch dot tensor 1। समझते हैं भाई कि ये मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ऐसे खाली आती जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी मैथ्स है जो कि अभी देखते हैं, हम इसको भी हल्का हल्का देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये इसके बारे में मैं डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर चुका था, लेकिन जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, सो दे कैन ऑल्सो पिंग मी। तो मैं इस सेपरेटली समझा दूंगा, बिकॉज फिर ये है कि चेन रूल से पूरा समझाना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव से पूरा समझाना पड़ेगा, एंड इट्स गोइंग टू टेक 1 आवर। तो दैट इज व्हाई मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा था। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ऐसी एक वर्कशॉप एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाती। ओके, नाउ लेट्स बैकप्रॉप नाउ, बिकॉज अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा, लिखा हमने आउट डॉट बैकवर्ड, हमने यहाँ पे ना ऑन कर दिया कि जब भी हमने आउट आउट के ऊपर बैकवर्ड ऑन करा, सो हमारे पास कंप्यूटेशंस आनी चाहिए हैं। वैसे तो हमने आगे जाके कहीं पे आउट यूज नहीं करा, बट दैट्स द फंक्शन विच आई हैव मेंशन हियर, आउट डॉट बैकवर्ड। और जब भी हम कभी किसी के ऊपर यू कैन से फंक्शन प्रिंट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट आना चाहिए। तो एक चीज़ और कि आउट डॉट बैकवर्ड का असल काम क्या होता है बेसिकली, कभी भी आपको अंदर लिखना हो कि आपने लिखा टॉर्च डॉट टेंसर जैसे हमारे पास ये था, और हमने इसका बैकवर्ड मालूम करना हो, सिंपल आप ये भी कर सकते हो, आउट डॉट बैकवर्ड कर दिया आपने, या कोई भी अब आपके पास मेथड है लाइक बी है डॉट बैकवर्ड कर दिया, तो आपको डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन हेयर, दिस इज जस्ट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ग्रेडियंट जिसकी बिहाफ पे अंदर बैक प्रोपगेशन परफॉर्म हो रही होती है। ऑलराइट, सो वी गोना मूव फर्दर लिटिल बिट। अच्छा, नाउ हियर वी गोना प्रिंट ग्रेडियंट्स। अच्छा, सही हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो काम हो रहा है ना, वो हम इसको मैनुअली यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक काम होता है सारे, यहाँ पे मैनुअली कर रहे हैं। और हम जब लिखते हैं ना एक्स डॉट ग्रेड, तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है, यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा होता है प्रिंट ग्रेडियंट्स डी आउट स्लैश डी एक्स। तो अगर आप इसको डी से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी मत पढ़ लेना ऐसा, ओ माय गॉड, बिकॉज दिस इज डेरिवेटिव ऑफ आउट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव निकल रहा है, डेरिवेशन हो रही है यहाँ पे हमारे पास। क्योंकि ऐसा एक चीज़ और कि कभी कभी सोचते होंगे इन अर्ली लाइफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता कि भाई डेरिवेटिव निकाल क्यों रहे हैं, हमारा ज़िंदगी में से ताल्लुक क्या है। हमारा पास अक्सर ये सवाल होता है, जैसे ये सवाल हमारा अक्सर औकात होता है मैट्रिक के अंदर कि भाई मैं फ्यूचर में क्या करूंगा इस ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो देखा ना आपने कितना काम पड़ा होगा फ्यूचर के अंदर आपको। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, देर आर वन who have to work because they cannot innovate, and the other is they have to work because they have to innovate. So eventually both type of people divides into both categories. तो अब आप अगर इस कैटेगरी के अंदर that you have to innovate, then you have to learn every single thing to innovate some innovations। जो innovation नहीं करते तो वो फिर इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनसे innovation नहीं होती,
और कुछ लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको इनोवेशन करनी होती है. सो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ पीपल, ऑलवेज रिमेंबर दैट. तो भाई डिफरेंट डेरिवेटिव के अंदर ना बहुत ही लंबी कहानी है. डेरिवेटिव का अगर मैं पहली एप्लीकेशन की बात करूँ, डेरिवेटिव की पहली एप्लीकेशन होती है कि यू कैन मेजर द साइज ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट उससे. ठीक है ना. फिर डेरिवेटिव से आप बहुत कुछ कर सकते हो. डेरिवेटिव से आप इवन तो हिस्ट्री मालूम कर सकते हो. अब फॉर एग्जांपल के इफ आई से यू कि जो पहला बोर्ड बना था जिससे हिस्ट्री इमेजिन की जा रही थी, ये जो लाई डिटेक्टर होता है उसके अंदर सारे डेरिवेटिव बेस्ड कैलकुलेशंस है. किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, हालांकि वो सिर्फ हार्ट के मेजरमेंट से डील कर रहा है. बट यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी मल्टीपल डेरिवेटिव कैलकुलेशन इज गोइंग टू डील विद इट जब वो हमारे पास हिस्ट्री बेस्ड काम हो रहा होता है. सो ऑलराइट, बट हियर वी आर गोइंग टू डील विद द पार्शियल डेरिवेटिव. तो थोड़ा आसानी अल्फाज में समझाऊंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं समझाऊंगा. तो भाई हमारे पास यहाँ पे काम है मैथमेटिकली वी आर हैविंग अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन y. हमारे पास y का वेक्टर आ गया, ठीक है ना, जिसका फंक्शन ऑफ वेक्टर x उसकी वैल्यू है. अब इसका कोई भी फंक्शन हो सकता है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ x. तो अब इसका जो ग्रेडियंट होगा ना वेक्टर y का, वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, x के, क्योंकि जाहिर है ये इसके प्रोपोर्शनली ऑफ कोर्स ही बात है. तो इस सिनेरियो के अंदर जब हमारे पास दोनों वेक्टर्स हो, सो देयर इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज नोन एज जैकोबियन मैट्रिक्स व्हिच इज क्लियरली इम्प्लीमेंटेबल. तो इसमें जैकोबियन मैट्रिक्स सिर्फ एक ही होता है जो कि इसका ग्रेडियंट होता है. द ग्रेडियंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज अ जैकोबियन मैट्रिक्स. हमें इन दोनों का ग्रेडियंट निकालना है. तो ये हमारे पास उसका ग्रेडियंट पूरा का पूरा. ओ माय गॉड. ओ हो. ओके, तो हमारे पास उसका पूरा का पूरा ग्रेडियंट ये आ गया है जो हमारे पास लिखा हुआ है. पार्शियल डेरिवेटिव y with respect to x1 and it's going till the bottom. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इफ यू विल सी इन द क्लियर फॉर्मेट, कुछ भी नहीं हो रहा. सब हमारे पास लिनियरिटी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकल रहे हैं. आई बिलीव कि आप लोगों को ही पता होगा व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. वी मे नॉट बी हैविंग सच डिफिकल्ट मैथ्स इन द लेटर प्रीटी सून, लेकिन इसको आपको जरूर मालूम होना चाहिए दैट व्हाट्स हैपनिंग हियर. ठीक है. जनरली स्पीकिंग, टॉर्च डॉट ऑटोग्रिड इज एन इंजन फॉर कंप्यूटिंग वेक्टर जैकोबियन प्रोडक्ट. यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई टॉर्च डॉट ऑटोग्रिड है ना, उसका जो पूरा का पूरा इंजन है वो सारा का सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेक्टर जैकोबियन प्रोडक्ट के ऊपर. मतलब इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो किस बिहाफ पे एडजस्ट करता है, वो इस बिहाफ पे ऑटोग्रिड यूजुअली एडजस्ट कर रहा होता है. दैट इज गिवन एनी वेक्टर. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर v आ गया जिसके अंदर इतने सारे पॉइंट वैल्यूज हमारे पास. ये अलग अपने वेक्टर्स होंगे v1 v2 एंड टिल गोज टू vm. फिर हमने क्या करना है, हमें इसका प्रोडक्ट मालूम करना है vt. हमें इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, दैट इज व्हाई इट्स रिप्रेजेंटेड. अब यहाँ पे बेसिकली vt डॉट j क्या होता है, ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर जैकोबियन प्रोडक्ट. ये कोई अलग अलग वैल्यूज नहीं है, ये एक ही वैल्यू है. ये हमारे पास वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई होगा j से जो कि हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स है, और हमारे पास आएगा प्रोडक्ट वेक्टर जैकोबियन. आप इसको प्रोडक्ट ये लिख लो या प्रोडक्ट वेक्टर जैकोबियन मैट्रिक्स लिख लो, एक ही बात है. सो इफ v हैपेंस टू बी द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है ना, हमारे पास ये इक्वेशन है फॉर एन एग्जांपल. अगर हमारे पास v के अंदर सारे के सारे जो ग्रेडियंट्स हैं वो एक स्केलर फंक्शन के हैं, then the chain rule the vector Jacobian product would be the gradient of L with respect to x vector. यहाँ पे चेन रूल सिंपल सिंपल अप्लाई हुआ है, मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ, सब इजी इजी बेस्ड इक्वेशंस लिखी हुई हैं. अगर आप यहाँ पे देखो, ओ माय गॉड, ये बार बार ये खुल जाता है. ओके, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल मैंने बताया हुआ कि भाई किस तरीके से बस पूरी चेन रूल अप्लाई हो रहा होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं फर्स्ट और पार्शियल डेरिवेटिव, और किस तरीके से हम लोग ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं. ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी होता अंडरस्टैंड करना, लेकिन कभी इन केस कभी इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई हाउ ऑटोग्रेड इज बीइंग कैलकुलेटेड, सो यू मस्ट नो कि भाई बाय यूजिंग चेन रूल. दे विल नॉट से यू कि भाई चेन रूल को सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं आती होगी, बट दे में ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स अ जीनियस गाइस. तो वो आपको अपनी जीनियसिटी दिखाने के चक्कर में आपको नेल डाउन करने की कोशिश करते हैं. सो देन you must know this that you this is a chain rule, this is a vector Jacobian product, don't try to ever teach me. all right, so ये सिनेरियो है यहाँ पे. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों ये हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम अच्छा है, क्यों इसके अंदर हमारे पास
विद द हेल्प ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स प्रोडक्ट हमारे पे एटो ग्रेड जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स ओनली द वन रीज़न, बिकॉज इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू फीड एक्सटर्नल ग्रेडियंट्स इनटू अ मॉडल दैट हैज़ नॉन स्केलर आउटपुट। अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कि फोटोशॉप, अच्छा वहाँ पे भी ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होगा लेकिन उसको उससे मर्ज नहीं कीजिएगा, वहाँ पे ग्रेडियंट डिफरेंट होता है। फोटोशॉप कभी किसी ने आप लोगों ने अगर यूज़ किया हो तो उसके अंदर एक होता है वेक्टर, एक होता है नॉर्मल लेयर्स जो होती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा लेयर्स हमने चूज करी करी हमने एक नई लेयर ली, हमने उस पर कोई भी एक आर्ट ड्रॉ कर दिया। अब मैंने कहा कि नहीं यार मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, हमने बोला चलो सही है, वेक्टर बना लो। मैंने एक वेक्टर स्केच किया उसके ऊपर। ठीक है, अब वेक्टर स्केच करने के बाद उस वेक्टर के अंदर मैंने बोला मैं कोई ना पैटर्न मैंने मास्क क्लिप करना है, मतलब एक डिजाइन डालना है, सिंपल डिजाइन भी डाल दिया मैंने। अब वो जो वेक्टर स्केच किया मैंने, चाहे वो मैंने किसी भी टूल से किया हो, उसमें आप जो भी डिजाइन डाल रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बी अ स्केलर वैल्यू। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेक्टर कैसा भी बनाया हो, आपने स्केच बनाया चाहे फिर आपने स्क्वायर भी बनाया हो, सो इन द बैक प्रोग्रामिंग ऑफ द फोटोशॉप इट्स गोइंग टू बी अ वेक्टर, कि भाई 2x2 का एक वेक्टर है। उसके अंदर आपने डिजाइन डाल दिया कि भाई रेड कलर का, तो दैट्स अ स्केलर वैल्यू टू ईच पिक्सल ऑफ द स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्वायर बनाया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 5x5 पिक्सल्स, 5x5 पिक्सल्स जो कि बहुत नजर भी नहीं आएगा, लेकिन आपने 5x5 पिक्सल का स्क्वायर बना दिया। अब 5x5 पिक्सल के अंदर कलर्स क्या की जो वैल्यूज है वो क्या है, हमने बोला कि सारी की सारी नल है। मीन्स क्या होगा कि जो हमारे पास हमने जो स्क्वायर बनाया उसके वैल्यूज नल है, तो मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा उसमें 8 GB A वैल्यूज होती हैं या फिर CMY की वैल्यूज होती हैं, आप डिपेंड करता है आपने कौन सी चूज की है। अब आपने चूज की 8 GB A, तो अब आपने रेड का कलर दे दिया 255, जी का कलर दे दिया आपने 0, बी का कलर दे दिया आपने 0, और ए का कलर आपने दे दिया 1 फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, कैसा स्क्वायर प्रिंट होगा आपका, आपका पूरा का पूरा स्क्वायर के जो 5x5 पिक्सल, जो 25 पिक्सल होंगे वो रेड कलर के प्रिंट हो जाएंगे। अब ये काम क्या हो रहा है, बेसिकली ये काम कुछ नहीं हो रहा, इसके पीछे भी पूरी मैथमेटिकल लॉजिक होती है कि आपने उसके मैट्रिक्स के अंदर ना स्पेसिफाइड वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है कि भाई मुझे ये वैल्यूज के ना कलर रिप्रेजेंट कर दो, उसने वो वैल्यू के आपको उस मैट्रिक्स के अंदर कलर रिप्रेजेंट कर दिए, और इसी तरीके से आपका स्क्वायर बन गया। नाउ व्हाट इफ वी आर नॉट हैविंग अ 2D मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्वेचर है और बहुत कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, वहां तो फिर ये 2D मैट्रिक्स वाला काम ही चलेगा ना, वहां पे तो मैट्रिक्स फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स तो ऐसा होता ही नहीं है। तो वहां पे परफॉर्म होता है जैकोबियन मैट्रिक्स। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मैट्रिक्स बाय द वे, नॉट अ सिंगल वन। तो वहां पे फॉर्म होते हैं इस तरह के मैट्रिक्स जिनके अंदर अपनी मैट्रिक्स के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव चल रही होती है, मैट्रिक्स के अंदर चेन रूल इंप्लीमेंट होती है जिससे कर्वेचर ड्रॉ हो सकता है, जिससे आर्किलिक बेस्ड मतलब चीजें फॉर्म हो सकती हैं कि सॉफ्ट आपने फिल्टर डाल दिया, ये डाल दिया, तो किस चीज से हो रही है, जो कर्वेचर हो रहा है, जो फिनिशिंग है, जो एज आ रहे हैं, जो कर्व्स आ रहे हैं, वो सारे किससे हो रहे हैं, वो बेसिकली इन्हीं काइंड ऑफ मैट्रिक्स से परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब बात यहाँ पे ये आई कि फोटोशॉप में ग्रेडियंट कहाँ से आया। फोटोशॉप में ग्रेडियंट आया होगा जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपने एक सर्कल टैब ड्रॉ किया, अब वो भी उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स आप उस कलर भी डाल दिया। ठीक है, नो वेयर आर द ग्रेडियंट्स ऑफ इट। अब ये डिपेंड करता है ना कि सर्कल पूरा तो गोल नहीं होगा, सर्कल या तो आपने ओवल सा बनाया होगा या तो बिल्कुल गोल बना दिया होगा, बिल्कुल हल्का सा गोल बनाया होगा, मतलब उसकी कोई ना कोई पाई वैल्यू चल रही होगी। अब वैसे सर्कल का जो वो होता है पाई वैल्यू होती है वो होती है 22/7, लेकिन अगर आपने ओवल टैप बना दी तो उसकी सर्कल की जो पाई वैल्यू होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब डिस्टर्ब हो जाएगी सो इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ डेरिवेटिव अपने आप ही शामिल होंगे, because static value can never represent the disturbed structure of any kind of circle। तो वहां पे जो हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। समझ में आई पूरी एग्जांपल कि मैं इतना जो घुमा के यू टर्न लेकर आया, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो भी बता दो, और अगर समझ में आया तो भी मुझे Q&A के अंदर बता दो कि भाई मुझे पता तो हो कि स्टूडेंट्स को मेरे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर में फिर क्वेश्चन चेक कर लूंगा। तो ये जो जितनी भी कर्वेचर वाली कहानी थी जो फोटोशॉप के अंदर हो रही थी, इसके पीछे पूरी आपने देखा कितनी बड़ी एक मैथमेटिकल हिस्ट्री इम्प्लीमेंटेबल है। देयर इज अ रीजन कि भाई जल्दी से लोगों अडोप्ट फोटोशॉप के बाद कोई और फोटोशॉप इम्प्लीमेंटेबल नहीं है मार्केट के बाद, क्योंकि इट टेक्स योर सोल एंड हार्ट कि आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर
रीडिजाइन करो। सो सेम गोस विद द एआई इज वेल, एआई के अंदर तो सारा काम ही इसका होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास उस तरह की चीजें हो रही हैं। ऑलराइट, सो दिस करेक्ट, अच्छा ये हमने देख लिया था। थोड़ा नीचे आते हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एआई के अंदर ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो भाई एआई के अंदर अगर इसकी बिल्कुल बेसिक लेवल इंप्लीमेंटेशन देखें विदाउट यूजिंग एनी डेरिवेटिव, तो हम यूं देख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू टॉर्च डॉट रैंडम 3 बाय 3 का हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म, नहीं 3 बाय 3 का नहीं, जस्ट 3, 3 बाय 1 का ही होगा ये, हाँ। तो 3 बाय 1 का हमने एक भाई मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। तो सही है, देखते हैं कैसा मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। लाइक -0.63, देन वी आर हैविंग -3.03, देन वी आर हैविंग -0.68 हेयर। तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। देन व्हाट वी आर हैविंग कि हमने एक्स फॉर्म करने के बाद, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास एक्स नहीं है। ठीक है, मैंने एक्स को प्रिंट कर दूँ बाय द वे, ये होना चाहिए हमारे पास एक्स, सो वी शुड नो दैट व्हाट वाज आवर एक्स। सो मैं एक्स को प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक हो गया, तो हमारे पास भाई एक्स भी हमारे पास प्रिंट हो चुका है। तो एक्स हमारे पास प्रिंट हो गया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई -0.1308, -2.0168, -1.3640। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी जो कि आ गई। देन व्हाट वी आर हैविंग हियर कि हमने बोला कि y को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। y को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि मतलब x y की वैल्यू मैं भी क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टू। तो हमारे पास 2 के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगी उनमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक हमारे पास 1308 था, 0.1308, तो वो 2617 हो गया। फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.168 था, तो उसका हमारे पास मल्टीप्लिकेंड आ गया, और वो हमारे पास -4.0337 हो गया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज इस तरह फॉर्म हो गई। देन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इट हियर, हमारे पास y फॉर्म हो गया। हमने अब क्या करा, क्योंकि हमने जब यहाँ पे लिखा होता है कि रिक्वायर ग्रेड 2, तो हमारे पास y के अंदर भी क्या लिखा आएगा, रिक्वायर ग्रेड 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन आएगा साथ, कि यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ, इसने बोला कि मेरे से पीछे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुई है। देन वी सेट कि while y डॉट डेटा डॉट नॉर्म इज लेस देन 1000, y इज इक्वल टू y इंटू टू। हमने बोला जब तक y का डिफरेंशियल डेटा 1000 से कम है, ठीक है, तब तक उस y को मल्टीप्लाई ले जाओ y2 से, तब तक वो जब तक 1000 से कम था तब तक। अब इसका आपको अगर मैं आसान फॉर्म में समझाऊं तो किसी कोई एक भी वैल्यू है जो कि 1000 क्रॉस करने वाली हुई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाइल लूप वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी, ये पॉजिटिव में थी, ये नेगेटिव में थी, तो यहाँ पे नेगेटिव में चलती चली गई, छोटी रहेंगी उससे, लेकिन ये पॉजिटिव में थी 1.3640 बाय चांस। तो अब ये एक वक्त पे आके 698.34 वैल्यू बन गई। लेकिन अब अगर इसका ये वाइल लूप मल्टीप्लाई करा इसने, करता है जो भी होता, तो वो उसको ब्रेक होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगा। क्योंकि अगर आप 600 को भी आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो वो 1200 बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 698। सो नाउ इन द नेक्स्ट सिनेरियो इफ वी स्टिल अगेन गोइंग टू प्रिंट बाय, तो हमारे पास अभी भी यही आ रहा है कि हम पीछे हमारे मेरे मल्टीप्लिकेशन हुई है। नाउ करंटली यहाँ पे देखने में ये लगेगा कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा आ रहा है, ये तो बताना चाहिए कि इससे मल्टीप्लाई हुआ है। सो दैट्स नॉट अ डील, क्योंकि इसके पास वो मालूम होता है इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, लेकिन हमें नहीं बता रहा होता। ठीक हो गया, वो अगर हम चाहे मालूम करना तो उसके वो फिर हमें सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, बिकॉज PyTorch haven't made an easy function for that. Okay, now in this case y is no longer a scalar. Torch or autograph could not compute the full Jacobian directly, but if we just want the vector Jacobian product, simply pass the vector to the backward as argument. समझे? तो हमें बेसिकली अब वेक्टर जैकोबियन प्रोडक्ट चाहिए, तो अब क्या करेंगे, मैंने एक बनाया, टेंसर बनाया, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी ना, हम उसको देखने जा रहे हैं अब। v का मैंने वेक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यूज दी हैं 0.1, 1.0 और 0.001, 0001, और मैंने डेटा टाइप रख दी है इसकी डी टाइप इज इक्वल टू टॉर्च डॉट फ्लोट। तो अब जितने भी हमारे पास वो हैं वो फ्लोट के अंदर ही अवेलेबल हैं। फिर मैंने क्या बोला, y डॉट बैकवर्ड v प्रिंट x डॉट ग्रेड। इधर क्या हुआ, कुछ समझ में आया? y डॉट बैकवर्ड b करा, x ग्रेड निकाला, तो यहाँ पे ये एक अलग ही वैल्यूज आ गई। अब बेसिकली हुआ क्या था, अभी चल रहा है बिल्कुल बैकवर्ड के अंदर काम। मैंने बोला y डॉट बैकवर्ड v
क्योंकि हमारे पास y ऑलरेडी स्केलर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। और अभी आपको यहाँ पे इतना जो है फुल जैकोबियन नहीं मिला होगा जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, ऑटो ग्रेड के थ्रू। तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जैकोबियन का वो मजा नहीं आएगा जो कि मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ। तो अब क्या हुआ कि हमने वाई डॉट बैकवर्ड वी कर दिया, वी इसके अंदर गया बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हमारे मैथ्स में गया था इधर, ठीक हो गया। ये हमारे पास वी आ गया था। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब y इस इक्वेशन के अंदर भी है और x भी इस इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी है। तो इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये दोनों आपस में ऑलरेडी अवेलेबल है। बस हमें क्या चाहिए, एक जैकोबियन मैट्रिक्स चाहिए, यूं कह लो, या फिर यू कैन से कि हमें, हाँ जस्ट फॉर इंस्टेंस हमें सब जैकोबियन मैट्रिक्स चाहिए। अब हमारे पास वेक्टर भी आ गए, तो क्या जैकोबियन मैट्रिक्स निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल कहानी होगी? नो। सिंपल क्या करोगे आप कि जो आपके पास y का वेक्टर होगा ना उस पर आप लगा दोगे y डॉट बैकवर्ड और अपना v पास कर दोगे इसके अंदर। आपने जहां y डॉट बैकवर्ड में v पास किया नहीं, नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स जस्ट सिंपली बाय इम्प्लीमेंटिंग डॉट ग्रेड इनटू x। यहाँ पे मैंने डॉट ग्रेड मालूम करा, यहाँ पे हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया है। अब यही काम अगर हम ऑटो ग्रेड से करते हैं ना तो वो हमें रिजल्ट देता है इस फॉर्मेट के अंदर, ये होता है उसका फॉर्मेट। ठीक है, हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पास करा देता है वो। लेकिन जब हमने यहाँ पे डॉट ग्रेड लगाया तो उसने हमें बकायदा पूरा प्रिंट करा दैट व्हाट वैल्यूज आर वी हैविंग इन आवर जैकोबियन मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल आसान आसान तरीके से मैंने कोशिश करी कि एक जैकोबियन मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकूं। You can also stop AutoGrad from tracking history on tensors with dot requires grade is equal to true, either by wrapping the code block in with dots dot no grade। ये काम मैं लास्ट टाइम भी करा था, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, और एक दफ़ा मैंने कहा रिवाइज करा दूं। हम चाहें तो इस काम के अंदर क्या कर दें, उसको रैप कर दें कि भाई वी डोंट नीड नो, ठीक है ना, ऑटो ग्रेड। तो हम क्या क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, वही दोबारा वाला कोड कॉपी पेस्ट मार दिया कि प्रिंट एक्स डॉट रिक्वायर्स ग्रेड और प्रिंट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डॉट रिक्वायर्स ग्रेड, दोनों में ट्रू आ रहा है। लेकिन जब मैंने सेम इसी कोड को मैंने रैप कर दिया विथ टॉर्च डॉट नो ग्रेड, तो भले से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा ना रिक्वायर्स ग्रेड, तो हमारे पास क्योंकि पेरेंट बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई ग्रेडियंट नहीं ले सकते। अगर आपने फ्लटर पढ़ी हुई और डार्ट पढ़ी हुई तो उसके अंदर विजेट्स का बहुत कंसेप्ट होता है, तो उसको एक तरीके से यूं जूम कर लो कि पेरेंट विजेट के अंदर हमारे पास ग्रेडियंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, दैट इज वाई उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर भी ग्रेडियंट इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये बस ये वही वाली कहानी है, एंड नथिंग more complicated here as we have already seen this before in the last workshop। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, और by simply using dot detach to get a new tensor with the same content but that does not require gradients। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने बोला अभी प्रिंट x डॉट रिक्वायर्स ग्रेड, हमें पता है कि भाई x के अंदर ग्रेडियंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ ट्रू हो गया। फिर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स डॉट डिटैच। अब x के अंदर से मैंने सारी की सारी जो हिस्ट्री थी ग्रेडियंट था वो निकाल दिया और उसको असाइन करा दिया y। अब जब मैं y के अंदर डॉट रिक्वायर्स ग्रेड करूंगा तो वो क्या बोलेगा, फॉल्स। मतलब y के अंदर हमने x की कुछ स्केल x का वेक्टर वैल्यू असाइन करा दिया, लेकिन उसके अंदर हमारे पास हिस्ट्री मौजूद नहीं है, दैट इज व्हाई इट्स रिप्रेजेंटिंग फॉल्स हियर। फिर हमने बोल दिया प्रिंट x डॉट इक्वेशन y डॉट ऑल, मतलब यहाँ पे y डाल के हमने कह दिया ऑल, तो उसने बोल दिया टेंसर ट्रू। मतलब मेंशन ही करना चाह रहा था कि क्या x के अंदर वो वैल्यूज मौजूद हैं जो y के अंदर है, तो उसने बोला हाँ मौजूद है। बस इसमें वो हिस्ट्री कैलकुलेट नहीं करता, उसने सब सिंपल का टेंसर ट्रू, और ये हमारा तीसरा फंक्शन भी ट्राई हो गया है। ये फंक्शन मेरे लिए नया था, ये मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देखा। क्या हम अगर इसको इसमें डाल दें सो इट विल टेल यू के क्या x y के इक्वल है, वो बोलेगा हाँ। अब लेकिन इसमें एक चीज है जो कि मैंने भी देखा, बड़ी एक्साइटिंग चीज थी, वैल्यू सेम है लेकिन y और x हिस्ट्री के मुताबिक सेम नहीं है। ठीक हो गया, क्या मतलब कहने का मेरा मतलब कहने का ये कि y के पास तो हिस्ट्री है ही नहीं, हिस्ट्री सिर्फ x के पास है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो टेंसर्स के मुताबिक में दोनों सेम है, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग यू टेंसर ट्रू। ठीक है, हमारे पास दोनों सेम टेंसर्स हैं, एंड दैट्स ऑल। बाकी जो इसकी मैंने फंक्शन एपीआई के कुछ डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक दिया हुआ है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी।
आप चाहो तो जो बैकवर्ड फंक्शन हमने यूज करा है वो खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, कि कैसे बनता है, के अंदर क्या प्रोग्रामिंग है, पूरी पूरी मैथ्स की इसमें एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, अगर आप चाहो पढ़ लो, पूरी 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 थ्योरी है। आई हैव डिडंट सी मच प्रोग्रामिंग है, पूरी की पूरी थ्योरी है, सो यू कैन सी दैट pretty clearly whenever you are having time. That's it. So our class is almost end. So if there is any question, let me know. All right, someone has asked a very good question, sir. Can we use PyTorch and TensorFlow simultaneously? Yes, of course. We can use simultaneously तो खैर आप हर काम ही कर सकते हो। लेकिन हम दोनों का पैरेलल भी यूज कर सकते हैं। ऐसी बात ही नहीं है कि हम दोनों का पैरेलल यूज नहीं कर सकते, लेकिन दैट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क। दोनों को पैरेलल यूज करना, ये याद रखना कि भाई, क्योंकि PyTorch के टेंसर अलग होते हैं और TensorFlow के टेंसर्स अलग तरीके से बन रहे होते हैं, और दोनों जो है ना आपस में कंप्यूटेबल नहीं होते। साइमल्टेनियसली तो आप आराम से कर सकते हो, साइमल्टेनियसली करने में क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन पैरेलल करने के अंदर मुश्किल होती है थोड़ी सी। लेकिन वो आपको सब ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आपका काम जो है पाइटॉर्च से हो रहा है, कौन सा आपका काम टेंसरफ्लो से हो रहा है। मैं बहुत जल्द साल के मिड के अंदर, विच इज गोइंग टू बी द मिड फॉर माई नेक्स्ट मंथ, मैं अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करूंगा। तो इंशाल्लाह 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 जब मैं अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करूंगा, सो इन दैट यू विल सी कि पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो विल बी इन द सिंगल गेम, और वो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन होगी लेकिन चल रही सारी एआई के ऊपर होगी। इट गोइंग टू टेक सम टाइम, 6 months or 7 months. Currently I am learning you know एडवांस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस जो होती है, ताकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऑप्टिमाइज्ड एआई मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकूं। Then we're gonna see that in the future. Hamza, that's great that you have shared this document on the chat. Please share this document on Coders Hub as well. So it's going to help other students too to understand what you have shared with me. All right, guys. Any further questions? Okay. Ali, can you please elaborate your question? I didn't understand it clearly, and there were so many typos in your question as well. I guess you were in quick hurry while typing a question. Oh, okay, 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 okay. All right, all right, all right. Yeah, Akash have mentioned in the group as well कि TensorFlow 2.4.0 आ गई है, and that is why मेरे उस ग्रुप पे रिप्लाई फौरन दिया था that don't upgrade, and you guy has upgraded it. चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उस वक्त वहाँ पे भी ना यही मेंशन किया था कि भाई एरर आ जाएगा। तो आपके पास जो एरर आ रहा है ना कि इट कैन नॉट सिंक विद द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन 3.8, वो यही आ रहा है क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया था कि पाइथन टेंसर पे जो 2.4 आ रही है वो पाइथन 3.9 पर है। और आपके पास अगर आप टेंसर फ्लो के साथ नमपा इस्तेमाल कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको एरर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि नमपा भी 3.8 के ऊपर, अभी 3.9 पे बनी नमपा ही नहीं आई है, 3.9 पे बनी पांडास भी नहीं आई है, 3.9 पे बनी एनाकोंडा का एनवायरमेंट भी नहीं आया, 3.9 पे बनी साइकिल भी नहीं आई है। सो ट्राई टू बी विद इन द लिमिटेशंस, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। Okay, Ali Raza, he is a different Ali, and he is asked regarding Power MS Power by BI. कुछ लोग BI बोलते हैं, कुछ लोग BI बोलते हैं, जो मर्जी आप बोलो। So he's asked what is okay, क्या काम करता है? हाँ भाई, इसका काम कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ मैटप्लॉटलिब। बस वहाँ पे आपके पास एक डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे आप काम थोड़ा सा आसानी से कर सकते हो। इट्स प्रीटी डिफरेंट देयर। वहाँ पे काम थोड़ा सा आपके पास टूल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कोडिंग होती है, दैट्स इट। खास फर्क नहीं होता, बट दैट ग्रेट, क्योंकि अपर के ऊपर ये बोल रहे हैं कि बहुत काम इनको देखने को मिला है, और वो सही बोल रहे हैं, बिकॉज अपर के ऊपर वाकई बहुत काम होता है इसका, पावर बाई का। एंड पीपल आई हैव सीन जस्ट विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, साथ में अगर आपकी डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस की टेक्निक्स थोड़ी अच्छी हो, so with the combination of MS Power BI, people are earning more than $2,500 per month on Upwork. So yeah, it's a good tool. Any question, further question, guys? We just are having 3 more minutes. Then we're gonna say bye.
Right, so two students have said today's workshop was easy. मतलब कल मुश्किल लानी पड़ेगी है. क्वालिटी इज डिस्टर्ब. अब तो वर्कशॉप भी खत्म हो गई. बता रहे हो क्वालिटी इज डिस्टर्ब. Alright guys, so see you tomorrow. इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी. कल हमारी क्लास पाइटॉर्च की आखिरी क्लास होगी एंड देन वी गोना जंप टू डीप लर्निंग. जिस हमारा पूरा प्रोग्राम ही डीप लर्निंग के ऊपर है, उस पर हम बेसिकली 2 हफ्ते के बाद अब जंप करेंगे इंशाल्लाह. और उससे पहले हम लोग सारी पीडीएफ्स जो थी डीप लर्निंग की वो पूरी कर रहे थे. हमने पीडीएफ्स पूरी कर ली है. मेजर पीडीएफ्स वर डन इन द मशीन लर्निंग प्रोग्राम ऑफ कोर्स. अब थोड़ी सी नॉर्मल पीडीएफ्स रह गई थी, हम वो पूरी कर रहे हैं. एंड देन वी गोना जंप टू डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो कि बड़ा मजेदार होंगे. Meanwhile, I'm free for 1 hour. If you are having any questions, you can post on the Coders Hub in the forum, not on the WhatsApp because I'm not available on the WhatsApp right now, but available on the Discord. So see you tomorrow. Allah Hafiz. Bye bye.